So look at the next topic, that is a vaporization. So what is the vaporization? It is just the change of state, and that is a substance from liquid state to gaseous state is called vaporization. But vaporization occurred by the two process. One is boiling and second is evaporation. As already we had discussed in the chapter first, what is the boiling process and the evaporation factor. So first of all, what is boiling? So boiling, when a liquid is heated at a particular temperature, so it will be heated at a particular temperature, then the liquid molecules gain sufficient energy so as to overcome the intermolecular forces present between liquid's molecules and becomes independent and free. As a result, liquid is transformed into gaseous phase. So the change of state of substance from liquid state to gaseous state is known as a boiling process, and this particular temperature at which it is happened, it changes from liquid to gaseous state, it is called it's a boiling point or boiling temperature. So vaporization means converting from liquid state to gaseous state, and it happened with the two processes. One is boiling and evaporation. And as we know that, as we discussed, that a boiling happened at a fixed temperature. So all different liquid has different fixed temperature at which they start boiling, mean to say they start converting from a liquid state to its gaseous state. For example, we have water. Water's boiling temperature is 100 degrees Celsius. So this is the fixed temperature for the water. So what is going on? We are giving the heat, and this heat required to overcome the intermolecular forces. So intermolecular forces between लिक्विड मॉलिक्यूल, सो जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं एक मॉलिक्यूल की दूसरे का नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ. सो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, देन व्हाट विल बी हैपेंड, दे गेन द हीट एनर्जी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब कि उनकी एनर्जी इंक्रीज होने के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वो ओवरकम कर जाएंगे. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये इनको ओवरकम करेंगे, तोड़ देंगे. देन दे एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट. And one thing more, in the boiling process, all the liquid molecules will participate in this phenomena, that is they are start converting from liquid state to gaseous state, and it will be happened at a fixed temperature. Temperature जो पूरे liquid का है वो fixed रहेगा. As I given the example कि we have the water has the fixed temperature, that is boiling temperature 100 degree Celsius, और जब तक water के पूरे molecules कन्वर्ट नहीं हो जाते इनटू देयर गैसियस स्टेट, तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ना बढ़ेगा नहीं. इट विल नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द 100 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट फिक्स टेम्परेचर होता है. सो नेक्स्ट इज सेकेंड फिनोमेना, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर्स from the surface of liquid. Evaporation is a slow continuous process and confined only at the liquid surface. So it is quite different from the boiling. So boiling happened at a constant at a fixed temperature, but it happened at any temperature below the boiling point. Yes, it happens at the surface of the liquid, not for all the molecules of the liquid, but the molecules at the surface of the liquid, then it will be happened. So evaporation is not a bulk process, it is a surface phenomenon. So change of liquid into vapor state at all temperature from the surface of the liquid, slow process होता है, continuous process होता है, and only happened at the liquid surface. So what is going on? Again, on the basis of the kinetic theory of gases or substances, what is all the molecules of the liquids, whether it's liquid, solid or gaseous, whatever, all they are moving within the
लिक्विड. सो व्हाट विल हैपन, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड करेंगे. देन व्हाट विल बी हैपन कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा होती है. देन दे विल टेक द एनर्जी फ्रॉम दीज पार्टिकल्स, जो इसके नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये एनर्जी ले लेते हैं. दैट इज ड्यूरिंग द कोलिजन. देन व्हाट विल बी हैपन, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं सरफेस पे, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट कि ये बल्क में हो रहा है, ये सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास इतनी एनर्जी ज़्यादा आ जाती है कि वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स को ओवरकम कर देते हैं. देन आफ्टर दैट दे गेन दैट एनर्जी एंड एस्केप फ्रॉम दिस सरफेस एंड द लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. हम इसको लुक एट दैट, हम इसको हीट नहीं कर रहे, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे फिलहाल, स्टिल गेटिंग, दे आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग पार्टिकल्स. ये अपने आप एनर्जी ले रहे हैं ड्यूरिंग द कोलिजन के कारण. एक रेस्ट पे होगा तब इनको ये एनर्जी नहीं मिलेगी. दैन बिकॉज एज वी नो दैट दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग विद इन द लिक्विड. जब ये कोलाइड करेंगे तब ये एनर्जी गेन करें. दैन इट विल टेक एनर्जी एंड ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देन कन्वर्टेड इन द गैसियस स्टेट. इवेपोरेशन को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं एज वी डिड इन द चैप्टर फर्स्ट. इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया. येस ऑफ कोर्स, फ्लो ऑफ एयर ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी तब भी एवेपोरेशन फास्ट होगी. नेचर ऑफ लिक्विड, जैसे मैंने पहले एग्जांपल थी, लिक्विड है हमारे पास, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है या कुछ और ऐसे लिक्विड होते हैं जैसे, तो उनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत जल्दी उनकी इवेपोरेशन जो फास्ट हो जाती है. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ भी, जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, अगर आपने शेड में डालोगे तो विंटर में डालोगे तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है. सरफेस एरिया, आप एरिया ज़्यादा बढ़ा दो, छोटे से कप में आपने कोई हॉट टी डाली हुई है, कुछ भी हॉट वाटर या हॉट लिक्विड डाला है, तो वो उसको इट विल टेक मच मोर टाइम दैन दैट ऑफ कि अगर आपने उसको ओपन सर्फेस कि बड़े बाउल में उसको डाला हुआ है. सो दीज आर द सम फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस क्या है. दैन इवेपोरेशन हैपन एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसका टेम्परेचर उसके लिक्विड के पर्टिकुलर उसका फिक्स्ड पॉइंट दैट ही बॉइलिंग पॉइंट पर हो जाए. एंड इट विल बी हैपन ओनली एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये उससे पहले कभी भी नहीं होगी. जैसे मैंने वाटर की हम एग्जांपल लेते हैं कि एट 100 डिग्री, देन इट विल बी हैपन एट 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट बिलो दैट. ये सरफेस में होने के सिर्फ सरफेस के ऊपर की होगी, लेकिन दिस इज द बल्क प्रोसेस थ्रू आउट द लिक्विड, के लिक्विड के अंदर जितने सारे के सारे पार्टिकल. बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वी आर गिविंग द हीट फ्रॉम द आउटसाइड बाय द एक्सटर्नल सोर्स. देन ऑल द पार्टिकल विल टेक दैट एनर्जी, ऑल द पार्टिकल्स, एंड स्टार्ट एट देयर फिक्स्ड टेम्परेचर स्टार्ट changes into gaseous state. So some molecules near surface of a liquid may gain that heat energy and kinetic energy will be increased during collision and they overcome the intermolecular forces of attraction. As I told you कि इसमें सारे के सारे ही molecules participate करेंगे, liquid के सारे ही particle vaporize होंगे, gaseous state में converted होंगे. Molecules अगेन लिक्विड सरफेस जो है वो अब्जॉर्ब करेंगे हीट एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, जो उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स है. एज आई टोल्ड यू कि जो उसके सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स है वहाँ से लेंगे एनर्जी एंड दे विल अब्जॉर्ब दैट एक्स्ट्रा हीट एनर्जी फ्रॉम हियर. देन व्हाट विल बी हैपनिंग, इनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एनर्जी यहाँ से ले ली. इनका टेम्परेचर डाउन होने के साथ क्या होगा कि इवेपोरेशन के कारण क्या होगा, देन क्योंकि वो एनर्जी यहाँ से ले रहे हैं, एक्सटर्नली उनको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, देन इनकी एनर्जी डाउन होने के टेम्परेचर डाउन होने के कारण तो ये इनका जो हीट भी कम हो जाएगी, तो ये कूलिंग इफेक्ट है, दैट इज ठंडक मिलेगी. तो इवेपोरेशन कॉजेज द कूलिंग. सो यहाँ पे क्या कि हीट सप्लाइड बाय द सम एक्सटर्नल हीट सोर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. सो एक्सटर्नल सोर्स के और टेम्परेचर कांस्टेंट का चेंज नहीं होगा. यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट. सो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. तो ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है, पूरा दिन भी लग सकता है पूरे का पूरा लिक्विड इवेपोरेट होने में, लेकिन ये बहुत रैपिड प्रोसेस है. एज वी आर प्रोवाइडिंग द fixed temperature heat energy at a fixed temperature, it start fastly, that is converted into their gaseous state.